the campaign trail for the NCP. Shashikant Shinde is a candidate from here. The star campaigner Amol Kole is here. Trumpets all around me. How's the campaign going? What are the key issues that the NCP is going with in the elections? The key issues are farmer distress. Key issues are unemployment. Key issues are the industries which have been taken away from Maharashtra. These are the key issues in this election, and if you can see, if you can witness, if you can sense the pulse, ordinary people have taken this election in their hand, and this election is not only between two candidates. This election is not only between two parties, but this election is against a government which for 10 years has not fulfilled people's expectations versus its ordinary people of India is this election. Prime Minister Modi, while campaigning here, has called Sharad Pawar Bhatakti Atma. What would you respond to that? जी हाँ, ये भटकती आत्मा वही भटकती आत्मा है जो किसानों की दुख दर्द दूर करने के लिए भटकती। ये वही भटकती आत्मा है जो महिलाओं को स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में 33% आरक्षण देती है। ये वही भटकती आत्मा है जिन्होंने महिलाओं के लिए 11% आरक्षण दिया मिलिट्री में। ये वही भटकती आत्मा है जो गुजरात में जब भुज का अर्थक्वेक आया तो विरोधी दल में होने के बावजूद वो पहले थे जो श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को उन्होंने कहा कि आपत्ति निवारण का, डिजास्टर मैनेजमेंट का मुझे एक्सपीरियंस है किल्लारी की वजह से, तो मैं पहल करता हूं। तो ये भटकती आत्मा, हमें फक्र है कि ये महाराष्ट्र की आत्मा है, ये महाराष्ट्र के किसानों की आत्मा है, ये महाराष्ट्र के युवाओं की आत्मा है, और हम इस आत्मसम्मान के लिए जरूर लड़ेंगे। ऐसा जो पर्सनल कमेंट किया है मोदी जी ने शरद पवार के बारे में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वोटर्स पे? सी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन and keeping respect with that institution, when honorable prime minister has to come to this personal criticism, this signifies that honorable prime minister is sensing defeat, and that's why he has to take so many rallies in Maharashtra despite having broken two parties illegally, having one CM, two DCM, 200 MLAs, and still prime minister has to come. That means BJP is sensing a huge defeat in Maharashtra. From 2019 to 2024, there's a sea of change in Maharashtra. The parties have been split into two. Some say that it was Uddhav Thackeray and Ajit Pawar who decided to move away because their parties were not doing enough. Some say it's the BJP that brokered it. What do you think that the voters are going to think of? Many also said this. Voters do feel this. Voters do know this. Ki on 27th of June, Honorable Prime Minister makes a comment in Bhopal in a rally about corruption of some leaders, and the leaders whose names were involved, allegedly involved in those corruption, switch the side. What does it mean? But there are corruption charges against the candidate of the NCP. What would you say to that? Because Udayan Raje Bhosle said that he's a corrupt person. That's why NCP is backing him. If there are corruption charges, are these real corruption charges or these are fabricated cases? Because all over the country you are witnessing this. What happened in Indore? What happened? बिकॉज 17 साल पहले के केस निकालते हैं और कैंडिडेट पीछे हटता है। ये भी 2009 की पहली केस निकाली, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र शुड आंसर दिस कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 2014 to 2018. तो one case was before 2014, so what Mr. Chief Minister did during his tenure. Another case is of 2016. तो उस केस में जो कंपनी है उसको रिकमेंडेशन किसका है? तो उसको रिकमेंडेशन खुद ऑनरेबल देवेंद्र जी फडणवीस का है। तो ये जो बात है ये जनता के सामने लानी चाहिए और इन बातों पे बात करनी चाहिए। और इस केस में जो पणन मंत्री थे, ये पणन मंत्री दोनों अब बीजेपी में हैं, तो इन पे बीजेपी क्या कार्रवाई करी ये भी बात बतानी चाहिए। इनफैक्ट द बीजेपी आल्सो सेज द लास्ट टाइम इट हैड रेन्ड अ लॉट, दिस टाइम इज गोइंग टू बी रेनिंग वोट्स इन फेवर ऑफ द बीजेपी। बोला है एनसीपी को और शरद पवार जी को अब छाता निकाल लेना चाहिए जब रिजल्ट आएगी। This is basically boosting their Karyakarta's confidence. They are trying to boost their Karyakarta's confidence because there is a huge defeat which can be sensed all across Maharashtra. So this is just an attempt to boost their confidence. Okay, my last question to you is, Udayan Raje Bhosle also said that Chhatrapati Shivaji Maharaj is the icon of Maharashtra. He stood for United India. Congress, NCP stand for tukde tukde mindset. People will never choose them. With due respect to Honorable Chhatrapati lineage, Udan Maharaj ji, Chhatrapati Shivaji Maharaj never bowed, never kneeled down in front of Delhi, is the history.
And what I feel is that Satara people are very fortunate. They are getting opportunity to have two MPs. The person who is from Raj Gharana will continue to be in Rajya Sabha, and the person who is from people will be in Lok Sabha. So your message to the voters of Satara? Any message on the voting day? बोलने के लिए? आपके पास अपॉर्चुनिटी दो एमपीज आपके पास रहने वाले. राज घराण्याचे वारसदार हे राज्यसभेवर आणि लोकनेता शशिकांतजी शिंदे साहेब लोकसभेवर. Thank you so much for speaking to us. During the campaign trail, there's a lot of hurry, of course, because the campaigning of Shashikant Shinde going on. Amol Kole, the star campaigner of the NCP, just entering the location here. Let's go around, speak to some of the other people as well, and find out the mood on ground. जिंदगी की हर बदलती कहानी चमकती रहे आप में हमारे जरिए. सर्कल ऑफ लाइफ बैंगल फेस्टिवल बाय सेंको गोल्डन डायमंड्स. सीधा घर में घुसे है रईस भाई. वेलकम. अगर रुंगटा स्टील से बनाया होता तो रईस यहाँ से नहीं आ पाता. रुंगटा स्टील का यही कमाल, एक बार लगे चले सालों साल. रुंगटा स्टील TMD बार एकदम सॉलिड. नया TVS Jupiter 125 SXE with Smart Connect. फिर से. तो नया TVS Jupiter 125 SXE with Smart Connect. इसमें है SMS alerts, call alerts, score updates, weather updates और voice assistant navigation. TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा. पिछले 75 सालों से घर घर में प्यार प्रेस्टीज में ही तो पक रहा है. जो अपनों से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार. Good evening and a very warm welcome. As Times Now's election yatra crisscrosses across Maharashtra, there's one question on everybody's mind. Which way do the voters go? From 2019 to 2024, there's been a big change. The NCP is split. The Shiv Sena is split. What about the BJP and the Congress party? These are the questions that we're all looking for answers to. Today, as we spoke to the voters, they also spoke about the parties being split and which way their votes would go. The Prime Minister has been campaigning extensively. So has the NCP patriarch Sharad Pawar across constituencies here. In Satara as well as Baramati, these are going to be key constituencies because these are constituencies that are known to be strongholds of the NCP. Can they withstand the Modi wave that the BJP speaks of? That's the question that we're going to be looking at today. Let's open this up. Guests joining us this evening, Dhairyasheel Kadam, District President of the Satara BJP. We have Prashant Nalvade, political analyst and President of the Dharmveer Yuva Manch of the Sharad Pawar faction. And we also have Ganesh Aivel, Shiv Sena Uddhav faction leader joining us. Thank you all for joining us this evening. As we go across the constituency speaking to the voters, there are many who are talking about Uddhav Thackeray being betrayed. They're talking about the Prime Minister saying that Sharad Pawar has become a bhatakti yatra. Kadam ji, आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? उद्धव सेना एनसीपी ये कह रही है कि बीजेपी नर्वस हो गई है यहाँ पर. नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं. बीजेपी नर्वस नहीं, उल्टा बीजेपी अटैकिंग पोजीशन में है. और सतारा जिला में अभी छत्रपति उदयनराजे जी को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है. मेरा ख्याल है कि और दावा भी है कि 100% बीजेपी कैंडिडेट छत्रपति उदयनराजे भोसले मिनिमम 1.5 लाख वोटों से यहाँ से जीत के आएंगे. 1.5 लाख वोटों से यहाँ जीत के आएंगे. लेकिन आपको क्या लगता है प्रशांत जी कि इस बार वो 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे? 2019 में क्या हो गया था, आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे शशिकांत जी शिंदे का इस चुनाव में बड़ी फर्क से विजयी होगा. क्योंकि ही इज बोर्न एंड बॉट अप फ्रॉम द सातारा एंड ही इज कमिंग फ्रॉम द कॉमन फैमिली. सो मुझे ये लगता है कि सतारा ये क्रांतिकारों का जिला है. यहाँ पे जो कोई गांव है मिलिट्री अपसिंग के नाम का, ऐसे इस जिले में बहुत से गांव ऐसे है कि हर घर में एक एक बच्चा आर्मी में जाता है. अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक
कुछ एक फतवा निकाला जो अग्निवीर का, अग्निवीर के बारे में आप कहोगी तो मुझे ये लगता है कि मेरा कहना यह है कि जब मेरे जैसा एक पढ़ाई करने वाला पढ़ने वाला बच्चा जब देश सेवा में जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने ये एक निकाला है। दूसरी बात ये है कि हमारे जिले का हर एक बच्चा पुणे और मुंबई में सिग्नल पे बैठता दिखता है। और जो बुरा लगता यह है कि हमारा बच्चा जब अपने माँ बाप को छोड़ के पुणे मुंबई में जाता है। अभी नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपना एक और ऑफिस और कारपोरेट ऑफिस अभी गुजरात में लेके गए हैं, तो हमें ये लग रहा है कि अभी हमें पुणे मुंबई छोड़ के गुजरात में जाना पड़ेगा क्या? अच्छा, लेकिन यहाँ पे एनसीपी रह चुकी है 99 से। आप कह रहे हैं यहाँ पे जॉब्स नहीं हुआ है, कई वोटर्स ये भी कह रहे हैं कि टूरिज्म का इतना कुछ यहाँ पे बढ़ावा नहीं किया गया है। फ्रॉम 99 इट्स बिन द एनसीपी दैट इज इन पावर। एनसीपी यहाँ पे रही है 99 से। तो लेकिन आप कहते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, इसीलिए उसका गुस्सा रहेगा। तो लेकिन सवाल आपसे भी उठेगा कि एनसीपी ने क्या किया 99 से जब वो यहाँ पे पावर में है? एनसीपी ने बहुत कुछ किया है ना। जब हमारा एक कोयना डैम है उसका प्रोजेक्ट का काम एनसीपी ने किया है। गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो भी काम एनसीपी ने किया है। एनसीपी ने काम किया है, इसलिए तो हम शशिकांत शिंदे जी को चुन के ले रहे हैं ना। तो हमें ये लग रहा है कि ये कॉमन फैमिली का एक आदमी है। और दूसरी बात ये है कि महाराज साहब अभी राज्यसभा के संसद सदस्य है। तो हमें लगता है कि शशिकांत शिंदे जब चुन के आएंगे तो जिले में 2 संसद सदस्य होंगे और अपनी जो भी कुछ प्रगति होगी वो अच्छी तरीके से होगी, हमें लगता है। अच्छा, तो आपने कहा कि वो कॉमन मैन नहीं है, वो एक राजा है, आपने उस तरीके से बात की। लेकिन कोल्हापुर में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो भी रॉयल फैमिली से हैं, वो भी डिसेंडेंट हैं शिवाजी महाराज के, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन अभी क्या है, कोल्हापुर का बेस अलग है और सतारा का बेस अलग है। कोल्हापुर में अलग तरीके से पॉलिटिशियन काम करते हैं, सतारा में अलग तरीके से पॉलिटिशियन काम करते हैं। एनसीपी का पॉलिटिक्स देश सामने रख के या राज्य स्टेट सामने रख के नहीं होता है। एनसीपी का पॉलिटिक्स किधर भी जाओ, डिस्ट्रिक्ट या तालुका प्लेस, यही सामने रख के हो जाता है। और बीजेपी में और एनसीपी में यही अंतर है कि बीजेपी देश को सामने रख के कुछ जो भी डिसीजन लेती है, जो भी कोई निर्णय लेती है, वो देश को तरीके कैसी हो, देश कैसा उन्नति हो, देश की सड़कें कैसे अच्छी बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा कैसा हो, ये देख के देश का सोच के काम करते हैं। लेकिन सवाल बीजेपी भी उठता है कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि हमने इतना काम किया है 10 सालों में, तो फिर आपको जरूरत क्या पड़ी कि आपने एनसीपी को तोड़ दिया और शिवसेना को भी तोड़ दिया? ऐसा भी सवाल वोटर्स पूछेंगे। देखो, ये राजनीति है। एनसीपी को तोड़ा नहीं है, शिवसेना को तोड़ा नहीं है। ये बीजेपी पार्टी के साथ एनसीपी को लग रहा था कि अजित पवार गुट को आना चाहिए क्योंकि देश तरक्की के मार्ग पे जा रहा है। वैसे ही शिवसेना के पार्टी में उद्धव ठाकरे से कई जो हमारे एमएलए थे वो नाराज थे। उनको भी लग रहा था कि उद्धव ठाकरे जी कई गलत काम कर रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं। कि चुनाव में 2019 में महाराष्ट्र के जनता ने ये मैंडेट दिया था कि शिवसेना और बीजेपी को चुन के लाया था। ऐसा नहीं था अकेले आप सहमत है कि उद्धव जी ने बीजेपी को धोखा दिया है, बीजेपी ने नहीं धोखा दिया है उद्धव को? नहीं, बीजेपी ने उद्धव साहब को धोखा दिया। ये सब जनता जानती है, यहाँ के सब लोग जानते हैं यहाँ के कैसे शिवसेना फूटी। इन्होंने कैसे कटकारस्थान करके यहाँ के शिवसेना के विधायकों को, सांसदों को ईडी लगा के, सीबीआई लगा के, आईटी लगा के उनको सबको धमका के अपने पास किया। और फिर यहाँ किस तरह से कटकारस्थान करके कुटिल नीति आजमा के यहाँ के सत्ते पे आ गई। यहाँ की सरकार अभी जो बैठी है वो घटना बाह्य है। ये बार तय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि यहाँ की जो सरकार बैठी है वो अभी तक घटने के अनुसार नहीं है, हमारे संविधान के अनुसार नहीं है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब बात बता रही है। वो सब यहाँ की सब जनता जानती है, यहाँ का कॉमन मैन हर कोई बात जानता है कि कैसे भाजपा ने यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने क्या क्या किया और किस रात कहाँ गए और क्या किया। उसके बाद ये फिर भी ऐसे कह रहे हैं तो इनकी
क्या बोल सकते हैं हम इनके विचारों को? लेकिन आपके यहाँ से नंबर्स भी घट रहे हैं। शिंदे सेना जो है शिवसेना की, वहाँ पे आधे से ज्यादा आपके पार्टी के लीडर्स जा चुके हैं। वो कहते हैं कि वो असली सेना है। जो गए वो सब के सब ईडी के डर से गए हुए हैं, सब सीबीआई के डर से गए। जिसने किसी ने भी अपने पेट में बचता है उतना पैसा नहीं कमाया, उससे ज्यादा कमाया है, वो हर कोई आदमी बीजेपी के राह पर है। शिवसेना जो फूट के गई है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उनके साथ में चली गई, अजित पवार के साथ में चली गई। आप देखोगे जो कोई आदमी उसके साथ है, जो कोई विधायक है, जो कोई पार्टी का मेंबर था, पदाधिकारी था, जो कोई आदमी था, वो सब अपने ईडी के वजह से चला गया है वहां से। अच्छा, ईडी की वजह से गए हैं लोग। इनफैक्ट यहाँ पे भी जो कैंडिडेट है उन पर भी फाइनेंशियल फ्रॉड का केस लगा हुआ है। उन्होंने ये कहा है, शरद पवार जी ने भी ये कहा है कि हमारे कोई कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, उनको चाहिए इंदौर जैसा हो यहाँ पर भी, इसीलिए ऐसे फॉल्स केसेस लगा रहे हैं। नहीं, अभी मेरे भाई साहब ने जो ईडी का बात बताया, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ईडी कभी 1947 से ईडी है यहाँ पे। ईडी कांग्रेस के जमाने में भी थी। ईडी ने कांग्रेस के जमाने में भी सभी पर छापे मारे। जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी ये जिनके पास अवैध संपत्ति थी उनके ऊपर केस किए थे। अभी जो कांग्रेस के और बाकी गुटों के लोग हैं, इवन बीजेपी का कोई गलत काम करता है, उसके पीछे भी ईडी और जो न्यायालयीन प्रक्रिया है उसमें से गुजरना पड़ता है। रही बात इधर के कैंडिडेट की, तो इधर के कैंडिडेट पे जो केस हुआ है वो केस है नई मुंबई का, मार्केट कमेटी का केस है। और वो केस के अभी नहीं हुआ है, वो केस हुआ है 2014 में, और उसकी चौकसी लगाई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने। ये अभी का नहीं है, ये 10 साल का नहीं है। और दूसरी बात ये भाई साहब ने जो बताया कि भाजपा ने तोड़ फोड़ की नीति की है। देखो, शिवसेना और एनसीपी के जो एमएलए थे, जो आघाड़ी सरकार में महाराष्ट्र में काम करते थे, उनके जो मतदार संघ थे, जो उनके विधानसभा के मतदार संघ, जिन्होंने उनको चुनाया था, जो पब्लिक आमदार को चुनती है, एमएलए को चुनती है, वो पब्लिक कह रही थी कि बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी साहब देश को आगे लेके चल रहे हैं, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, रेल पटरी को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे जो एरोप्लेन का बात है, जो हमारे एयरपोर्ट है, हमारे IIM है, MIT है, सब जो भी है इंस्टीट्यूट, ये इतना दुगना संख्या में खाली 10 साल में बढ़ गया है। और ये सब लोगों को अच्छा लगा था, इसलिए पब्लिक बोल रही थी एमएलए को कि भाई नरेंद्र मोदी साहब के पास चलो, इसलिए वो खुद चल के ये फोड़ तोड़ के ऐसा नहीं होती है कभी। अच्छा प्रशांत जी, ऐसा है तो रात के 10-12 बजे के बाद जब कोई देवेंद्र फडणवीस नाम का आदमी जो इस राज्य का उप मुख्यमंत्री है, वो अपना पहराव बदल के किधर जाते थे? टूट फूट की राजनीति नहीं है तो ये सब जनता जानती है। पहराव बनेगा क्या है आपके पास? ये कहने का कहने विधिमंडल कहने की बात है, ये पहराव नहीं होता है। यहाँ के जो खुद मुख्यमंत्री है उनके मुंह से निकली हुई बात है विधिमंडल में। ऐसी जब बातें आती है तो फिर लीडरशिप पे भी सवाल उठता है। तो यहाँ पे एनसीपी, उदयनराजे जी भी एनसीपी में थे पहले, जब मोदी वेव था 2014 में, 2019 में ही वन फ्रॉम एनसीपी, ही वाज द एनसीपी कैंडिडेट। तो ऐसा क्या हुआ कि वो बीजेपी चले गए? तो क्या इज इट अ फेलियर ऑफ एनसीपी लीडरशिप कि वो उन्हें रोक नहीं पाए? नहीं, फेलियर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो राजा है, राजा को जो मन में आए वो राजा करते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे भाई साहब बोले कि बीजेपी अच्छा है, बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, बीजेपी ये कर रहा है, बीजेपी वो कर रहा है। मुझे ये लगता है कि बीजेपी इज अ वेल गुड प्लानर फॉर द डाउनग्रेड टू ईच पर्सन एंड ईच क्रिएटिव लीडर्स। इनफैक्ट मैंने आज हमने बात की उदयनराजे जी से, और उन्होंने ये कहा कि एनसीपी में मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि मैंने करप्शन नहीं किया है। उनके जो नेता हैं वो करप्शन करते हैं, इसीलिए उनके लिए सही कैंडिडेट हैं। नहीं, मुझे ये बात कहनी है कि महाराज साहब तो महाराज साहब है, मैं पहली भी बार बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। लेकिन महाराज साहब पहले भी थे ना, उस वक्त नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था ना, क्यों नहीं हो रहा था? और बीजेपी एक अच्छा अनुशासन बताने वाली पार्टी है, तो बिस्तर पर सोए हुए किरीट सोमैया को उन्होंने क्या शासन दिया है वो बताएं।
चलिए आप आंसर करना चाहेंगे कि ये जो है आपने जो बोला है एनसीपी के खिलाफ, जो आपने बोला है शरद पवार के खिलाफ, जो आपने बोला है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, वो मानते हैं कि ये बाला साहेब के लड़के ने आपने धोखा दिया है उनको, तो वो इम्पैक्ट होगा? ये बात धोखे की जे मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि 2019 में क्लियर कट मैंडेट था शिवसेना और भाजपा का, क्लियर कट मेजॉरिटी थी। और सुनो और जब भी कभी नरेंद्र मोदी साहब आते थे रैली में, जब भी अमित शाह आते थे रैली में, तो उनके मुंह से आगे का मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ऐसा ही आता था। सब कैसेट निकाल के देखो, हम दिखा सकते हैं कि सभी के मुंह से। और तभी जब स्टेज पर थे तभी उद्धव ठाकरे जी को कभी ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी हमें दगा दे रही, ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन जब चुन के आए, बीजेपी का सपोर्ट लेके चुन के आए, और एनसीपी जो विचारों के खिलाफ है, कांग्रेस जो विचारों के खिलाफ है, बाला साहेब ठाकरे की विचारों के खिलाफ है, उनके साथ उन्होंने गरोबा कर लिया। ये लोगों को रुचा नहीं, और वो लोगों ने एमएलए के ऊपर दबाव किया कि हमें कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना नहीं। आपने जो कांग्रेस के साथ अलाय किया है, इसके लिए लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, उद्धव फैक्शन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसका नतीजा आप देख रहे होंगे। आज मोदी जी को, अमित शाह को इस महाराष्ट्र स्टेट में कितनी सभा लेना पड़ रही है। यहाँ की जो सहानुभूति है, यहाँ की जो उद्धव साहब के वास्ते जो दिलचस्पी है, वो आप देख रहे होगे, पूरा देश देख रहा होगा कि किसने किसके साथ धोखा किया है। उसका जवाब है जब बाला साहब ठाकरे के खोली में बैठ के, जब उनके रूम में बैठ के जब बात तय हुई थी, अमित शाह से मुक्की निकली हुई, अब उससे ये मुकर रहे हैं, वो जाने दो। लेकिन जो कुछ भी तय हुआ था, उन्होंने एक ही बात नहीं मानी थी। तभी इसीलिए उद्धव साहब ने उनको यही कहा था, जो भी तय हुआ है उसके बदौलत होगा, वरना हम आपके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगी सवाल कि आउट ऑफ द 48 सीट्स आपको क्या लगता है कितने सीट्स मिलेंगे बीजेपी को, महायुति को? देखो, बीजेपी ने लास्ट 2 इयर्स में बूथ लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी सच्चे अनुशासित पार्टी है, और बीजेपी का कार्यकर्ता पहले देश, पहला राष्ट्र, फिर पार्टी, और लास्ट में खुद को मानता है। बीजेपी के पास त्याग करने वाला कार्यकर्ता है, समय देने वाला कार्यकर्ता है, कोई अपेक्षा नहीं रहती उसके पास, वो ऐसा ही देश के लिए काम करता है। अभी भी ये चुनाव चल रहा है, ये चुनाव देश का चुनाव चल रहा है। बीजेपी को वोट मतलब देश का भविष्य के लिए वोट है। बीजेपी को वोट मतलब देश का 2047 का विकसित भारत को वोट है। ये चल के हमारी पार्टी चल रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए, जो आम आदमी को जो राहत मिली है, जो तरुणों को, जो महिलाओं को, जो गरीबों को, ये 10 साल के शासनकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो राहत दी है, जो उनकी जो आसानी से उनको पीड़ा जो है दूर की है, उसी बदौलत ये महाराष्ट्र में 48 सीट से 45 सीट डेफिनेट चुन के आने वाले, ये हमारा दावा है। महायुति के लिए आपको क्या लगता है? दावे के साथ 30 सेकेंड्स, आपको क्या लगता है कि नंबर क्या होगा? नहीं, नंबर तो पता नहीं, मैं सातारा का बता रहा हूँ। यहाँ पे कॉमन मैन शशिकांत शिंदे आएंगे, और जब मोदी जी आए थे 2 दिन पहले कराड़ में, तो उन्होंने जो प्लान किया है, क्योंकि ये सातारा है वो हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ से जो भी कंट्रोल रहा था स्वराज्य में, यहाँ से सूरत लूटने का प्लान यहाँ से हुआ था और सूरत लूटी थी। ये मोदी जी इधर आके सातारा लूटने का प्रयास करेंगे तो हम ये होने नहीं देंगे, और उसमें वो सफल होने ही नहीं वाले हैं। अच्छा, अगर उन्होंने जब जैसी बात कही कि बीजेपी का कार्यकर्ता ये राष्ट्र की बात करता है, तो हम क्या यहाँ के आतंकवादी है क्या? हम भी इस देश के ही कारण, इस देश का ही हम सोचते हैं, और हम इस देश का ही भला चाहते हैं, और इसके बदौलत हम भी यही कहते हैं कि 45+ ही हमें आएंगे, और यहाँ की महाविकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी ही देश पे राज करेगी। इतना ही बात कहूंगा। अच्छा, ऑल राइट, चलिए ये यहाँ तो डिबेट चलता रहेगा। The voters are going to decide, and of course we are going to continue talking to the people, get you the voices of the people. The biggest factors here, is it going to be development? Who should be the prime minister, or is it going to be the local issues of the changing political scenario in Maharashtra? That's the big question.